হ্যালো, গুড মর্নিং গাইস। এখন বাজে 6:12, সোমবার 8 তারিখ। সব থেকে স্পেশাল দিন একটা আজকে পুজো দেবো, প্লাস সোমবার, বাবার বার। মানে দারুণ দিন। আগের বছরও আমরা দিয়েছিলাম এরকম দিন, 8 তারিখেই দিয়েছিলাম। এবছরও 8 তারিখ, আগের বছরও 8 তারিখই ছিল। যাই হোক, একটা ভিডিও আছে রেকর্ড করা, এটা তোমাদের দেখাবো। ফোনে করছি তো বেশি ভালোভাবে আসেনি। পুরো অপর প্রান্তরা পুরো বরফে ঢেকে আছে, বরফের চাদরে। দেখা যাবে কিনা আমি জানি না, বাট আমি নর্মাল রেকর্ড করেছি, ওটা তোমাদের দেখাবো আমি। সেখানে ভিউটা তো মানে সেই লাগছে, আর ঠান্ডাও দারুণ, নাক পাক পুরো বন্ধ হয়ে আছে। যাই হোক, যখন পুজো দিতে যাবো তখন মন্দিরটা সবাইকে দেখাবো। তো মন্দিরের ভেতরটা দেখাতে পারবো কি না জানি না, বাইরেটা দেখাবো। চলো ফ্রেশ হই। মানে আমি এখনও এই জাস্ট ঘুম থেকে উঠলাম 5:45। উঠে দাঁত ফাত মাজিনি, ব্রাশটাও করিনি আমি। মানে ভিউটা দেখে জাস্ট এমনি আমি পুরো স্তব্ধ হয়ে গেছি। এই যাবো, এবার সব করবো আস্তে আস্তে। চলো দেখা হবে। লাগছে হাটটাই তো দারুণ লাগছে। চাটা কোথায় হচ্ছে দেখো, খুব জোর চাটা ফুটছে। এই চা হচ্ছে এই পাহাড়, সুন্দর বরফে ঢাকা, আর এই তার পাশেই হচ্ছে বাবার মন্দির। এই যে, আর এইখানে হচ্ছে চাটা নাড়ানো চলছে। এই হিমালয়ে চলে এসেছি তো। সেই সন্ধিক্ষণ যাচ্ছি এবার পুজো দিতে বাবার কাছে। চলো যেতে থাকি। আর মহাদেব, দিন সোমবার, 8 তারিখ, 8টা 25। স্মৃতি হয়ে থাকবে, স্মরণীয় স্মৃতির পাতায় লেখা রইল আজকের দিনটা। হ্যাঁ মহাদেব। চলো এই সন্ধিক্ষণে আসছি। আর মহাদেব, এই সেই স্মরণীয় জায়গা, যার জন্য এত কষ্ট, সব কিছুর অবসান এখানেই এবার। যাচ্ছি এবার সেইখানে। জয় শ্রী কেদার, জয় শ্রী কেদার, জয় বাবা রুদ্রনাথের জয়। হর মহাদেব। इतनी आरज मोरी सुन लीजिए, मेरा अंत समय जब आए, रूह मेरी अमराज नहीं, भोलेनाथ ही लेने आए। इतनी आरज मोरी सुन लीजिए, मेरा अंत समय जब आए, रूह मेरी अमराज नहीं, भोलेनाथ ही लेने आए। मुझको अपना बना ले, चरणों में तू जगा दे, मोक्ष दे या सजा दे मेरे भोले। मुझको नंदी बना ले, अपना संगी बना ले, अपना बंदी बना ले।
বাবার ছবি তো তুলতে পারবো না, তাই দেখাতে পারিনি। তুলে দিচ্ছি ধরো। মোস্ট হলি রিভার সরস্বতী লেক, রুদ্রনাথ মন্দির থেকে মাত্র 2 থেকে 3 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত হচ্ছে এই সরস্বতী লেক। মা সরস্বতী কুণ্ড, এই হচ্ছে সরস্বতী কুণ্ড। মানে এত সুন্দর জলটা, প্লাস মানে এখানকার অ্যাটমসফিয়ারটা, মানে এখানে একবার যে যাবে তো গিয়ে মানে আর ফিরে আসতে ইচ্ছা করবে না, এতটাই মনোরম আর শান্তির পরিবেশ। মানে এই জন্যই হয়তো ঋষি মহারিষিরা এইসব জায়গায় এসে ধ্যান করে ভগবানকে পাওয়ার চেষ্টা করতে। একটু উপরে মন্দির থেকে হচ্ছে মা সরস্বতী কুণ্ড। যাবো একটু মাথাটা ঠেকানো। মাথাটা ঠেকি আছি। এই যাবো। আবার টেকো মা সরস্বতী। भोले तेरा नाम जपूं, तुझको मैं जान सकूं, सबसे ज्यादा भरोसा है तेरा। मुझ में तू ऐसा दिखे, दुनिया से दूर रखे, मुझको बस तू बना ले रे तेरा। शंख बजाओ, नाद सुनाओ, आज গুড মর্নিং সবাইকে। আজ ক্যালেন্ডারের তারিখ বলছে 9 তারিখ, 9/9/2025। ঘড়িতে বাজে সময় 7:05। তো আমরা বেরিয়েছিলাম আনসারি মাতা যাওয়ার উদ্দেশ্যে। গতকাল রাতে আমরা বাবার আরতি দেখে ওখানেই আমরা স্টে করেছিলাম। পরের দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার আমরা গিয়েছিলাম আনসারি মাতার পথের যাওয়ার উদ্দেশ্যে। মানে রাস্তাটা তো খুবই সুন্দর, প্রচণ্ডই সুন্দর আর ভালো।
কিন্তু কখনো কখনো এতটাই ঢাল আসে যে যখন তখন পা হড়কে যেতে পারে। তো আমি সাজেস্ট করব, যারা এই রাস্তাটা চিনতে পারবে তারাই এসো, আদারওয়াইজ এই রুদ্রনাথ থেকে আনসারি মাতার পথে যাওয়ার চেষ্টা করো না। এক, আনসারি মাতা মন্দির দর্শন করে তোমরা রুদ্রনাথ এসে দর্শন করতে পারো, এটাই সব থেকে ভালো। বা রুদ্রনাথ থেকে আনসারি মাতা যাওয়ার রাস্তা খুবই খারাপ, প্রচুর খারাপ। আচ্ছা, আনসারি মাতা যাওয়ার পথে আমরা লাঞ্চ সেরে নিয়েছিলাম আলুর পরোটা, গরম গরম আলুর পরোটা আর আমের আচার দিয়ে। পরোটাটা মানে এতটাই সুন্দর খেতে হয়েছিল আর এতটাই মোটা ছিল যে একটা খেলেই মানে মানুষের পেট ভরে যাবে। পুরো ঘন জঙ্গল ভাই। রুদ্রনাথ মাতা আনসুইয়া যাওয়ার পথ। আমরা ছাড়া আর কেউ নেই পুরো রাস্তায়। আর এই রাস্তায় কতজন যায় আমাদের কোনো আইডিয়াও নেই রাস্তার হাল দেখে। যেখানে আমরা রেস্ট নিয়েছিলাম, পরোটা খেয়েছিলাম, সেই দোকানে ভাইয়া বলেছিল যে অন্তত 5 দিন এই রাস্তায় কেউ আসেনি এখনো। সোলো তো একদমই করো না এই রাস্তায়, 4-5 জন বন্ধু বান্ধব ছাড়া একদমই করো না। হ্যাঁ, সব থেকে বড় জিনিস গাইডার। প্রথমেই বলে রাখি, গতকাল রাতে আমার ফোনের চার্জটা গেছে শেষ হয়ে, তো লিটারেলি ফোনটা অফ। তো আমি যতটা সম্ভব চেষ্টা করব তোমাদেরকে দেখানোর। তো আমি বলে রাখি, যারা রুদ্রনাথ ট্রেক করবেন এবং আনসারি মাতা দেখবেন বলেন ঠিক করেছেন, তো তারা আনসারি মাতা দর্শন করে তবেই রুদ্রনাথ আসবেন। তো আমার এটা পার্সোনাল সাজেশন। তার কারণ রুদ্রনাথ থেকে আনসারি মাতা যাওয়ার রাস্তা যতটা সম্ভব ঠিক ততটাই ভয়ঙ্কর। মানে যথারীতি ঢালগুলো এমন প্রচণ্ড পা হরকাচ্ছে। তো দেখুন, আচ্ছা, এই যে কুকুরটাকে তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ, এর নাম দেওয়া হয়েছিল, সবাই দিয়েছিল ডোমিক্স। তো স্পেশালি আমি এর নাম দিয়েছিলাম নন্দী, কারণ রুদ্রনাথ থেকে মণ্ডলগ্রাম অলমোস্ট 26 কিলোমিটার। এই 26 কিলোমিটার পর ও আমাদের সাথে যাত্রা করেছিল। আচ্ছা, এই হলো দেবী আনসুরি মাতার মন্দির। রুদ্রনাথ থেকে অলমোস্ট এই আনসুরি মাতা মন্দির 20 থেকে 22 কিলোমিটারের কাছাকাছি। তো এই মন্দিরে কথায় আছে যে বিবাহের পর যাদের বাচ্চা নিয়ে সমস্যা হয়, তো এই মন্দিরে মায়ের কাছে এসে নির্জলা উপোস করে একদিন পুজো দিলে নাকি মা স্বপ্নে দেখা দেন এবং নাকি সেই সমস্যার সমাধান। তো চলুন এখানকার পুরোহিতদের মুখেই শোনা যায়। फिर कई सालों तक नहीं उठते थे। अब वो सप्तऋषियों में से एक थे, तो उनको लोक कल्याण के लिए शिव भगवान जी द्वारा कहा गया था कि आप लोक कल्याण के लिए जाइएगा, है ना। तो वो अपना कार्य नहीं कर पा रहे थे, तो पुत्र प्राप्त चाह रहे थे। तो फिर अंश माता और त्रिमुनि जी दोनों ही तपस्या के लिए शांत जगह ढूंढने बैठे हिमालय में, है ना। तो ढूंढने बैठ गए थे हिमालय में, कहीं ना कहीं कोई ऋषिवर या कोई देवी देवता बसे हुए थे सप्तयुग में, है ना। तो उस टाइम पे तो देवी देवता थे, सबसे पहले देवी देवता था, है ना। अब क्या हुआ कि जब ढूंढते 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 उनको ये स्थान मिला, तो यहाँ पे भी ऋषिवर थे, है ना, पर उतने नहीं थे। तो फिर उन्होंने कहा यहाँ पे शांत है, हम यहीं पे ठहर जाते हैं, रुके यहाँ पे। फिर उन्होंने तपस्या करने स्टार्ट कर दी। अब माता जी जो थी वो पतिव्रता थी, है ना। तो माता जी अपने पति जी की सेवा करने बैठ गई।
तो सेवा करते करते अतृषि जी का ध्यान नहीं लग रहा था, तो वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे चले गए, जहाँ से आप आ रहे हैं अभी रुद्रनाथ से ना, तो बीच में एक नीचे के लिए रास्ता जा रहा था। तो वहाँ पे विश्व में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे गंगा माता की प्रतिमा होती है। बाकी आपको कहीं भी गंगा माता की प्रतिमा का वर्णन नहीं मिलेगा। अब माता जी यहाँ से अपने पति जी का नाम ही स्मरण करने बैठ गई, क्योंकि पतिव्रता था तो फिर अकेले में क्या करते, तपस्या में कुछ हो ही नहीं था, अपने पति से सर्वश्रेष्ठ किसी को भी नहीं मानती थी माता जी। तो अपने पति जी का नाम स्मरण करने बैठ गई, तो उनका तेज इतना बढ़ गया कि पूरे संसार में उनकी चर्चाएं चलने बैठ गई। अच्छा, है ना। तो नारद जी भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने देखा कि ये तेज कहाँ से आ रहा है, वो आए नीचे, तो उन्होंने देखा कि माता जी जो है वो अपने पति जी का नाम स्मरण कर रही है। तो वो यहाँ से चले गए देख के, क्योंकि उनका कार्य था तीनों लोगों से समाचार लाने का और समाचार देने का, तीनों लोगों में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये तीनों देवों को देने और तीनों लोगों में समाचार का कार्य करना था। अब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि तीनों लोगों में जब तीनों देवियाँ आपस में मिलकर कि ये बहस कर रही हैं कि हम ही सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता हैं, है ना, हम ही सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता हैं। तो नारद जी ने ये बात सुन ली, तो नारद जी तीनों देवियों के पास पहुंच गए और बोला कि आप तीनों से भी सर्वश्रेष्ठ एक है। अब तीनों देवियों को ये घमंड था कि हम जगत करते आओ कि वी भी हमसे श्रेष्ठ तीनों लोगों में कोई भी नहीं हो सकता है, कोई भी नहीं। तो नारद जी ने कहा कि आप तीनों से सर्वश्रेष्ठ भूलोक पे अतृषि जी की पत्नी अंशिया जी है। जब ये बात तीनों देवियों ने सुनी तो तीनों देवियाँ इतना ज़्यादा क्रोधित हो गई कि मृत्युलोक में, मतलब स्वर्गलोक में न होकर के मृत्युलोक में हमसे श्रेष्ठ है, तो कैसे बोल दिया नारद जी ने। तो वो अपने पतियों के पास पहुंच गए। अब अपने पतियों से उन्होंने बोला कि आप जाइएगा और अंशिया जी के पतिव्रता धर्म को आप भंग कर दीजिएगा, हमसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं होना चाहिए। तो तीनों देवों को तो पता था कि जगत करता थे, तो उनको तो पता होना ही चाहिए था, है ना। उनको पता था कि माता जी जो है वो पतिव्रता है। अब क्या करते, अपनी बीवियों की बात टाल नहीं सकते थे, इसलिए तीनों देव ऋषि मुनि वेश में यहाँ पे आ गए। माता जी से भिक्षा मांगी, तो माता जी जैसे उनको भिक्षा देने बैठ गई, वैसे ही तीनों ऋषियों ने एक शर्त रख दी माता जी के सम्मुख कि हम भिक्षा तभी लेंगे जब आप निर्वस्त्र हो जाएंगे। अच्छा, है ना। तो कोई भी स्त्री किसी भी मर्द के सामने निर्वस्त्र नहीं हो सकती है ना। तो माता जी दुविधा में पड़ गई कि अब मैं क्या करूं। तो माता जी ने अपने पति जी का ध्यान किया, तो अतृषि जी ने ध्यान में बोला कि आप तीनों ही ऋषियों में जल छिड़क दीजिएगा। तो माता जी ने तीनों ही ऋषियों में जल छिड़का, तो वो 6 महीने के बालक बन गए। अच्छा, फिर माता ने अपना दुग्ध स्पान कराया। फिर कई साल बीत गए, तीनों देव यहीं रह गए। तीनों लोगों का काम सारा का सारा रुक गया, है ना। जब तीनों लोगों का काम रुक गया तो सभी देव देवता परेशान हो गए कि तीनों देव कहाँ गए। तो वो तीनों देवियों के पास पहुंच गए, सभी देवी देवता तीनों देवियों के पास पहुंच गए। पूछा कि तीनों देव कहाँ गए, तीनों लोगों का काम रुक गया है। अब तीनों देवियों को पता था कि वो तो अत्रि अंशी आश्रम में गए हैं, पर ये नहीं पता था कि वो कहाँ है। तो वो नारद जी के पास पहुंच गए। तो नारद जी से पूछा कि अत्रि अंशी आश्रम कहाँ है। तो नारद जी ने बताया केदारखंड में बद्रिका आश्रम है, अत्रि अंशी आश्रम है। तो वो यहाँ पे आए तीनों देवियाँ। माता जी से पूछा कि हमारे पति देव यहाँ पे आए थे। तो माता जी ने कहा मेरे पे तो ये तीनों ही बालक हैं, अगर आपके पति हैं तो पहचान लीजिएगा। अब माता जी ने उनके सम्मुख एक प्रस्ताव रख दिया कि अगर आप अपने ही पति को पहचानते हो तभी आपके पति धर्म को जाना जाएगा, है ना, तब आप श्रेष्ठ मानी जाओगे। तीनों देवियों को कहा होगा। अब तीनों देवियों ने अपने पतियों को देखा, तो जो तीनों बालक थे वो एक समान के एक स्वरूप के थे, है ना। तो तीनों देवियां नहीं पहचान पाई। तो उन्होंने फिर माता जी से क्षमा मांगी और बोला कि आप ही इस संसार में सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता हो। फिर माता जी ने तीनों देवियों को क्षमा किया और अपने कमंडल से जल निकाला और तीनों ही बालकों में जल छिड़का। फिर वो अपने स्वरूप में आगे थे। जैसे वो वापस जाने बैठ गए, वैसे ही माता जी ने उनसे आग्रह कर दिया, अब आप लोग तो चले जाएंगे, मैं यहाँ पे अकेली रह जाऊंगी, है ना। तो फिर तीनों देवों से 3 पुत्र प्राप्त हुए थे माता जी को, और एक वरदान मिला था माता जी को। तो जो 3 पुत्र हुए थे वो दुर्वासा ऋषि जी, चंद्रमा और दत्तात्रेय जी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्वरूप दत्तात्रेय जी में दिखता है, जो त्रिमुखी भी हैं, है ना। मार्ग चतुर्दशी के दिन यहाँ पे मेला लगता है, जिस दिन टाइम पे दत्तात्रेय जी अपने जन्मदिन के दिन यहाँ पे माता जी की सेवा करने आते हैं। अब वह ऐसा था कि अतृषि जी ने अपना ज्ञान जो भी था सारा ज्ञान वो दत्तात्रेय जी को दिया था, क्योंकि दुर्वासा ऋषि जी क्रोध वाले थे, है ना। और चंद्रमा जी को कार्य दिया गया था कि आप लोग कल्याण के लिए रात्रि को आएंगे। तो बचे दत्तात्रेय जी। तो दत्तात्रेय जी का अपना सारा कार्यभार मन में अतृषि जी ने दिया था। तो कहा था कि आप लोग कल्याण के लिए जाइएगा। अब जैसे ही वो जाने बैठ गए, वैसे माता जी ने आग्रह किया कि अब आप भी चले जाएंगे, मेरी सेवा कौन करेगा। तो दत्तात्रेय जी ने वचन दिया था माता जी को कि माँ मैं अपने जन्मदिन के दिन हर वर्ष मार्ग चतुर्दशी के दिन यहाँ पे आऊँगा माँ आपकी सेवा के लिए। तो वो मेला दिसंबर में लगता है यहाँ पे, है ना। दिसंबर में इधर पूरा बर्फ ही बर्फ रहती है।
नहीं, बर्फ़ इधर तो बहुत कम पड़ती है, पर ऊपर पड़ती है रुद्रनाथ में, है ना। और जो वरदान मिला था माता जी को तीनों देवों से, वो ये मिला था कि आप इस संसार में संतान दानी के लिए जानी जाओगी। तो जिनको संतान प्राप्त नहीं होते हैं वो एक दिन का व्रत रख के यहाँ पे आते हैं, रात्रि को यहाँ पे विश्राम करते हैं, माता जी उनको स्वप्न में किसी भी रूप में दर्शन देती है। अच्छा। धन्यवाद।